حضرات گرامی، آج شب عاشورہ ہے، جسے ہم ہندوستانی مسلمان قتل حسین کی رات بھی کہتے ہیں، تو ذلت و رسوائی سے ہمکنار ہو جائے گا۔ حسین نے کربلا کے میدان میں یزیدیوں سے ایک سوال کیا، اے یزیدیوں مجھے یہ بتاؤ، تم نے میرا پانی بند کیا ہے، تم نے میرا کھانا بند کیا ہے، میرے بچوں کو تم نے بے بس بنا دیا ہے، میری بیویوں کو تم نے بے کس کر دیا ہے، رسول اللہ کا گلشن تم اجاڑنے کے چکر میں ہو، فاطمہ کا آنچل تم پھاڑنے کے چکر میں ہو، زینب کی چادر تطہیر تم لوٹنے کے چکر میں ہو، شہر بانو کے وقار کو تم ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہو، آل محمد کے وجود کو تم مٹانے کی صحیح کر رہے ہو۔ جس نے تمہیں حیات ابدی کا فلسفہ سمجھایا تھا، اسی کی اولاد کو تم موت کے منہ میں ڈالنا چاہتے ہو۔ میں تم سے صرف ایک بات پوچھ رہا ہوں، تم نے میرا پانی بند کیا ہے، تم نے ظلم و ستم کے تیروں سے حسین ابن علی کو گھیر لیا ہے، یہ تو بتاؤ یزیدیو، کیا میں نے نانا کا کلمہ کبھی چھوڑا؟ یزیدیوں نے کہا نہیں۔ آپ نے کہا کیا میں نے کبھی نماز 5 وقتہ چھوڑی؟ یزیدیوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کیا میں نے کبھی حج و زکات و فرض روزہ و جہاد سے منہ موڑا؟ یزیدیوں نے کہا نہیں۔ خوب اچھی طرح سے بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ حسین پوچھتے ہیں کیا میں اسلام کا باغی ہو گیا؟ یزیدی کہتے ہیں نہیں۔ حسین کہتے ہیں کیا میں رسول اللہ کی سنت کا تارک ہو گیا؟ رکھے رکو بھائی، بیچ مت گڑبڑ کیجیے۔ وہ کہتے ہیں نہیں۔ آپ پھر پوچھتے ہیں کہ مجھے یہ بتائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر و نظر سے کیا میں نے کبھی منہ موڑا؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ حسین کہتے ہیں کیا میں کبھی جھوٹ بولا؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ حسین پوچھتے ہیں کیا میں نے کبھی کسی پہ ظلم کیا؟ آواز آئی نہیں۔ حسین کہتے ہیں کیا میں نے کبھی کسی کی امانت میں خیانت کی؟ آواز دشت و جبل کربلا میں گونجی نہیں۔ حسین پوچھتے ہیں یہ بتاؤ جب میں نے ظلم نہیں کیا، شریعت کا دامن نہیں چھوڑا، برائیوں کو ہاتھ نہیں لگایا، زنا و شراب کے قریب نہیں گیا، انسانیت کا خون نہیں کیا، تمہاری فکر و نظر کو پائمال نہیں کیا، تمہاری آبرو ریزی نہیں کی، تو کس جرم میں میرا پانی تم نے بند کیا ہے؟ کس جرم میں مجھ کو تم نے ننگی تلواروں کے سائے میں گھیر کر مرنے کی دھمکی دی ہے؟ امام پاک نے یہ سوال کیا اور یزیدیوں نے کہا نہیں۔ تو پوچھا کہ کیوں مجھے مارنے پہ تلے ہوئے ہو؟ یزیدی کہتے ہیں آپ یزید کی خلافت قبول کر لیجئے، آپ کو زندگی کی خیرات دے دی جائے گی۔ تو تم سن لو فیصلے۔ حسین نے یزیدیوں سے کچھ سوال کیے تھے اور ہر سوال پر یزیدیوں نے نہیں کیا تھا۔ حسین نے پوچھا تھا کیا میں نے رسول کے دین سے بغاوت کی؟ یزیدیوں نے کہا نہیں۔ کیا میں نے جھوٹ اور برائیوں میں حصہ لیا؟ یزیدیوں نے کہا نہیں۔ آپ کہتے ہیں پھر منہ نے میرا پانی کیوں بند کیا؟ یہیں سے مزاج ملا، پانی اس کا بند کرو جو شریعت کا باغی ہو گیا ہو، کھانا اس کا بند کرو جو رسول اللہ کی شریعت کا دشمن ہو گیا ہو، سزا اس کو دو جو نبی محترم سے عداوت رکھتا ہو، جہاد اس کے ساتھ کرو جو رسول اللہ کے دین کو اپنی طبیعت میں بدلنے کی ناپاک صحیح کرتا ہو۔ میرے حسین میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، میرے آقا تمہارے در کا غلام عبید اللہ خان اعظمی بھرے مجمع میں تم سے سوال کر رہا ہے۔ میرے حسین مجھے بتاؤ ان یزیدیوں سے یہ سوال کرنے کی تمہیں ضرورت کیوں پڑی؟ تو سنو قانون فطرت اور رسول اللہ کی فطرت و قدرت کے انداز کو نگاہ کے سامنے رکھو۔ حسین ذہن دے رہے ہیں اے مسلمانوں، میں یہ سوال نہ کرتا تو یہ سوال کس کے لیے ہوتا؟ میرے نانا نے مجھے فرمایا تھا حسین منی انا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، حسین کا قول میرا قول ہے، میرا قول حسین کا قول ہے، حسین کا کردار میرا کردار ہے، میرا کردار حسین کا کردار ہے، حسین کا خون میرا خون ہے، میرا خون حسین کا خون ہے۔ تو تبلیغ اسلام کے لیے کیا یہ مسلمانوں تمہیں یاد نہیں؟ اگر یاد نہیں تو شہید اعظم کہتا ہے اسلام کے چیپٹر کو تلاش کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ پہ نگاہ رکھو۔ نبی کونین نے جب کلمے کا آغاز کیا تھا تو کوہ صفا پہ نبی کھڑے ہو گئے تھے اور حضور نے صحابہ سے کہا
हुजूर ने मक्के वालों से कहा था, ये मक्के वालों मेरे पास आओ। मक्के के लोग जब इकट्ठा हुए तो नबी ने कहा था, मुझे ये बताओ, मैं बुलंद मकाम पर खड़ा हुआ हूँ, मुझको बताओ मैं कौन हूँ। लोगों ने कहा, तुम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह ने काफिरों से पूछा, बताओ मैं कभी झूठ बोला? काफिरों ने कहा नहीं। पूछा, मैंने कभी किसी पर जुल्म किया? खूब अच्छी तरह समझना बॉम्बे के मुसलमानों। पूछा, नबी ने कभी मैंने जुल्म किया? कहा नहीं। काफिरों से नबी ने पूछा, मैंने अमानत में कभी खयानत की? कहा नहीं। नबी ने पूछा, क्या मैंने कभी किसी को सताया? कहा नहीं। रसूलुल्लाह ने ये सब पूछा और जब अपने कैरेक्टर की जमानत कुफ्फार से ली मेरे आका ने, तब मेरे नबी ने कहा, फिर मुझे बताओ क्या मैं कभी झूठ बोला? काफिरों ने कहा नहीं। तो हुजूर ने कहा, सुनो तो अब मेरी सच्ची आवाज सुनो, अल्लाह एक है, मैं उसका रसूल हूँ, बुत तुम्हारे झूठे हैं, बातिल राह पे मत चलो। वहीं से नबी पे तीर चलने शुरू हुए। नबी को दुनिया ने गाली दिया तो इमाम हुसैन कहते हैं, ए लोगों, मेरे नाना ने पहले अपना कैरेक्टर अपने दुश्मनों के सामने पेश किया था और दुश्मनों ने अपनी जुबान से मेरे नाना के कैरेक्टर की जमानत दी थी। दुश्मनों ने मेरे नाना को ऐलान नबूवत से पहले सादिकुल वादुल अमीन कहा था और जब मेरे नाना ने नजरियाते हक्का की वकालत की तो दुनिया ने नाना को गाली दी। नाना ने ये मिजाज दिया था, ए हुसैन, जब भी दुश्मनों में देखना कि दीन फंसा हुआ हो तो पहले अपने कैरेक्टर की जमानत दुश्मनों से ले लेना। अगर नबी को कत्ल भी कर देते कुफ्फार तो तारीख और हिस्ट्री ये बोलती कि उन्होंने मुस्तफा को कत्ल किया था, जिन लोगों ने रसूलुल्लाह को सादिकुल वादुल अमीन कहा था। और आज भी हिस्ट्री ये बोल रही है कि उन लोगों ने रसूल को मक्के से निकाला था जो रसूल को अमीन कहते थे। आज भी तारीख ये बोल रही है कि उन लोगों ने नबी के ऊपर ताइफ में पत्थरों की बरसात की थी जो रसूलुल्लाह को कौनैन का सबसे बड़ा अमीन और रास्त गो मानते थे। हुसैन जहन दे रहे हैं, उसी नाना का मैं नवासा हूँ। यजीदियों से पूछते हैं, क्या मैं कभी झूठ बोला? यजीदी कहते हैं नहीं। क्या मैंने कभी कोई बुराई बेहयाई की? यजीदी कहते हैं नहीं। हुसैन ने जहन दिया, ए लोगों, मुझे मालूम है कि मेरी शहादत इन लईनों के हाथों से होने वाली है, मगर दुनिया की तारीख में अपना कारनामा तो छोड़ जाऊं ताकि जब कल का मुसलमान और कल का हिंदू, कल का पारसी, कल का सिख, कल का इंसान मेरी तारीख बयान करे तो साथ साथ ये भी बोले, उन लोगों ने मारा था हुसैन को जिन लोगों ने हुसैन की सच्चाई की शहादत दी थी। उन लोगों ने मारा था हुसैन को जिन लोगों ने हुसैन की अमानत की सच्चाई की गवाही दी थी। देख तो रहे हो करबला की सरजमीन पर मेरा आका किस ढंग से अपने मकासिद को दुनिया के सामने पेश कर रहा है। सलाम ओ हुसैन, तूने सदाकत की लाज रखी है। ये खुतबा देके इमाम अली मकाम बाहर निकलते हैं और आने के बाद आपने यजीदियों से कहा, सुनो, इत्माम हुज्जत के लिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम मुझसे जंग मत करो, खसारे में रहोगे, अल्लाह रसूल के सामने झुक जाओ। यजीदियों ने कहा, हुसैन, तुम्हें यजीद के सामने झुकना होगा। हुसैन ने कहा, मुसलमान का सर अल्लाह के अलावा किसी के सामने नहीं झुकता। जुल्म और सितम की दहलीज पर हुसैन के नाना ने सजदा करने का कोई सबक हमको नहीं पढ़ाया है। अमानतों का बादशाह खड़ा हुआ और उसने करबला के मैदान में यजीदियों को मुखातब करके एक ऐलान किया, यजीदियो, है कोई तुम में जो मेरा साथ दे दे? हुसैन ने ऐलान किया था, हल मिन मुगीसिन युगीसना, है कोई जो मेरी मदद करे? अब यही से आपका उबैद आपके जहन को टन दे रहा है। मुझे ये बताओ, एक तरफ तो हुसैन यजीद की किसी मदद को लेने के लिए तैयार नहीं, यजीद के मुकाबले में मरने मारने के लिए तैयार हैं, तो दूसरी तरफ यजीदियों ही से कहते हैं, हल मिन मुगीसिन युगीसना, है कोई जो मेरी मदद करे? ए मेरे इमाम, इन यजीदियों ही से अगर आपको मदद मांगनी थी तो आपने यजीद से क्यों नहीं मदद मांग लिया? सबसे बड़ा बादशाह आपको मदद करने के लिए तैयार था, यजीदी फौज से आप मदद क्यों मांग रहे हैं? तो हुसैन कहते हैं, नहीं नहीं, हल मिन मुगीसिन युगीसना का मफहूम तुम समझो। मैं मदद मांग रहा था इसलिए नहीं कि आओ मेरी जान बचाओ, मैंने तो शहादत का फैसला कर लिया था। यजीदियों में से मैं पाक और रूह और पाकीज़ा और सादतमंद रूहों को आवाज दे रहा था,
है कोई जो मेरी मदद करे। क्या मतलब ये हुआ कि है कोई जो शहादत में मेरी मदद करे, है कोई जो इस्लाम के ताउन में मेरी मदद करे, है जो ये अल्लाह के दीन की नुसरत में मेरी मदद करे, है कोई जो गर्दन कटाने में मेरी मदद करे, है कोई जो सर बिछाने में मेरी मदद करे, है कोई जो तलवार सीने पे इस्लाम के लिए लेने में मेरी मदद करे, है कोई जो यजीद की जेल में जाने में मेरी मदद करे, है कोई जो कुफ्र के मुकाबले में इस्लाम की शान दिखाने में मेरी मदद करे। मेरे हुसैन तेरे बोल बड़े प्यारे हैं, मेरे हुसैन तू बड़ी मनमोहन सूरत लेके करबला में उतरा था। हल मिन मुगीसी युगी सना का मफहूम सआदतमंद रूह ही समझ सकती थी। उसने समझा जिसने सबसे पहले हुसैन को रोका था, उसने समझा जिसने 1000 फौज लेकर हुसैन का घेराव किया था। हुर खड़ा हुआ और हुर अपना घोड़ा दौड़ाता हुआ हुसैन की तरफ बढ़ा। यजीदियों ने समझा हुर बहुत होशियार चालाक व मुदब्बिर है, जाकर हुसैन को पटा के लाएगा और हुसैन हमको सजदा करेंगे। हुसैन जुल्म यजीद के सामने बैत में मजबूर हो जाएंगे। आया हुर आंखों में चमक लिए हुए और रो के कहता है मेरे आका मेरी गुस्ताखी माफ कीजिए, आपने बुला लिया है, मैं जहन्नम के दरवाजे से जन्नत की दहलीज चूमने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। मेरे हुसैन मुझे माफ कर दो, मगर करीम इब्ने करीम, सखी इब्ने सखी और शहीद इब्ने शहीद की जुबान के तेवर मुलाहिजा कीजिए। कहता है हुर मुझे माफ कर दो, तो हुसैन गोद में उठा के कहते हैं हुर तू तो जहन्नम से आजाद है, जरा गुफ्तगू का तेवर तो देखिएगा। हुर कहते हैं मुझे माफ कर दो, हुसैन कहते हैं तू जहन्नम से आजाद है। अगर हुसैन ये कह देते कि ए हुर तुझे हमने माफ किया तो हालात क्या बनते? नहीं, हुर से अगर कह देते कि मैंने तुझे माफ किया तो हुर नर्वस हो जाता, हुर एहसास कमतरी का शिकार हो जाता। और रसूल अल्लाह की औलाद किसी को एहसास कमतरी नहीं देती। एहसास बरतरी की जो दौलत बांटने आए थे वो एहसास कमतरी का शिकार किसी को क्यों बनाते? इधर हुर ने कहा सरकार मुझे माफ करो, हुसैन कहते हैं तू तो जहन्नम से आजाद है। और हुर आया मैदान में फिर और उसने कहा हल में मुगीसी योगी सना, अल्लाह अल्लाह, इसी नारे को फिर हुर ने दोहराया है कोई जो हुसैन की मदद करे? हम पूछते हैं ए जनाबे हुर, इमाम हुसैन ने तो बुलाया था, आप आ गए मदद करने, इनसे आप क्यों कहते हैं है कोई जो हुसैन की मदद करे? है कोई जो हुसैन के साथ आए? हजरत हुर ने कहा ए यजीदियो सुनो, मैं यजीद का गुलाम नहीं, हुसैन का वफादार सिपाही बनकर बोल रहा हूँ, मुझसे सुन लो। इमाम हुसैन का ये जुमला याद रखना, अगर जुल्म तुम कर गए हो और हुसैन बुला रहे हैं है कोई मेरी मदद करे, याद रखना ये नारा बार बार लगेगा करबला में। और उन सादतमंद रूहों से कह रहा हूं कि अगर तुमने अपनी आकबत को देख लिया है तो पलट आओ, वरना करीम इब्ने करीम का मिजाज देखो, वो कह रहे हैं मेरी मदद करो, मेरे साथ आओ, ये नारा बार बार लगेगा। क्या मिजाज मिला? हुसैन का मिजाज तुमको पहचानवाना चाहता हूं। उन्होंने कहा था है कोई जो दीन की राह में मेरी मदद करे, मैं घेर घार के लाया, मेरी वजह से पानी बंद हुआ, मेरी वजह से हुसैन का खाना बंद हुआ, मगर करीम इब्ने करीम की शान अता तो देखो, जो ही मैंने उनके नाना के दीन की हिमायत के लिए अपने आप को पहुंचाया है तो हुसैन ने मेरा इतना बड़ा गुनाह माफ कर दिया है। अगर कोई तुम में से बदबख्त हो और अकबर को कत्ल कर दे और उसके बाद भी हुसैन के पास आ जाएगा, हुसैन के नाना के दीन की हिमायत करेगा, तो हुसैन उसको भी वैसे ही माफ करेंगे जैसे हुर को माफ किया है। हुसैन वैसे ही अकबर और असगर के कातिल को भी माफ कर देंगे। आज भी तलवारों की छांव में मेरा इमाम सलाहे आम दे रहा था याराने नुक्तादा को। नतीजा ये होता है कि जनाबे हुर पर हमलों की बारिश होती है और हुर इमाम हुसैन की अजमतों पे कुर्बान हो जाते हैं। आजाद हुआ पंछी जन्नतुल फिरदौस के आशियाने में मकीन हुई रूहे हुर। इमाम पाक ने इस लाश को लाकर खेमे के सामने रखा। अहले बैते मुस्तफा तुम्हारा इम्तिहान शुरू हो गया। अली अकबर कहते हैं बाबा क्या हम हक पर नहीं हैं? फरमाया बेटा हक तुम्हारे साथ है, तुम हक के साथ हो, तुम अली की औलाद हो, नबी के
दावा से हो। नताइज की शक्ल में गुलामान हुसैनी भी मैदान में हैं। अब जंग के तरीके जब शुरू हुए तो पहला तीर अम्र इब्न साद ने इमाम हुसैन की तरफ चलाया था। कमांडर इन चीफ ने यजीद के तीर चला के कहा, लोगों यजीद के दरबार में गवाही देना कि हमने हुसैन के ऊपर तीर चलाया था। कज़ा व क़द्र के मालिक ने कहा, बदबख्त, एक तू है कि तूने हुसैन पर तीर चलाया, एक तेरा जन्नती बाप था कि रसूल पे हराने वाला तीर मैदान उहद में रोका करता था। तो इनकलाबात है जमाने के, जरा बेटे की भी तकदीर देखो और बाप की भी तकदीर देखो। बाप हैं हजरत साद इब्न वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। करबला के मैदान से आगे उहद के मैदान में चलो, अबू सुफियान के तीर आ रहे हैं तो हजरत साद इब्न वकास अपने सीने पे ले रहे हैं। आज यजीदी तीर इमाम हुसैन के सीने पर अम्र इब्न साद पेश कर रहा है। जिस सीने को रसूल चूमते थे उस सीने पे अम्र इब्न साद ने तीर चलाया है। गुलामाने अहले बैत आगे बढ़े और जनाबे ज़हैर ने आगे बढ़ के कहा, ए जालिमों, मुकाबला करना है तो हमारे सामने आओ। कुर्बान हुए जनाबे ज़हैर। और ऐसे आलम में जब उनका दम निकल रहा था, जब वो जान दे रहे थे, उनकी आंखों में मोहब्बत के आंसू थे। हुसैन 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 के नारे लगा रहे थे। इमाम हुसैन अला जद्दही वालैहिस्सलाम ने ऐलान किया, मत घबराना मेरे गुलाम, मैं आ रहा हूँ। करीब पहुंचे तो मुस्लिम इब्ने औसजा को उन्होंने आवाज दिया, ए मुस्लिम इब्ने औसजा, मेरे हुसैन की इज्जत और लाज को रखने के लिए जरा मेरे सामने आओ और मुझसे जरा पैमाने वफा तो करते हुए गुजर जाओ। मुस्लिम इब्ने औसजा उनके बेहतरीन साथी थे। इमाम हुसैन की मुकद्दस गर्दन पर आज तीरों की बौछार है, मगर मेरा इमाम अपनी गर्दन को देने से पहले देखता यह है कि उसके गुलाम उसकी गर्दन पे अपनी गर्दन बलिहारी करते चले जा रहे हैं। आओ देखो, हजरत ज़हीर को अपने जानू पे इमाम हुसैन ने लिया है, दम निकलने वाला है। कहते हैं, मेरे आका, मेरे दोस्त जनाबे मुस्लिम को बुला दीजिए। मुस्लिम इब्ने औसजा आए और आने के बाद कहा, ए मुस्लिम इब्ने औसजा, तुम भी अपने आका पे ऐसे ही जान देना। जनाबे मुस्लिम इब्ने औसजा मैदान में उतरे और हुसैन पे कुर्बान हुए। उन्होंने अपने दोस्त को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, मेरे दोस्त, मुझसे एक वादा करो, मैं दुनिया से जा रहा हूँ। दोस्त ने कहा, मुझे समझ में आ गई मेरे बात कि आपका एक बच्चा है, आपकी एक बीवी है करबला के मैदान में, हम उन दोनों की हिफाजत करेंगे। मुस्लिम इब्ने औसजा ने कहा, गलत, तुमने नहीं समझा मेरी बात को। मुझे न इस वक्त बीवी याद आ रही है, न मुझे इस वक्त बच्चा याद आ रहा है, न मुझे इस वक्त दुनिया याद आ रही है। आमिना के लाल के चेहरे पे जुल्म की परछाई न पड़ने पाए और सैयदा के लाल के चेहरे पे मायूसी की किरण न जगमगाए। आओ आओ, सुनो मुझसे, अगर मेरे हुसैन पर वक्त आ गया और तुम जिंदा रहे तो अपनी लाश से खेल के चले जाना और उसके बाद हुसैनी अजमत को बचा के ऐलान करना, हम रसूल अल्लाह के गुलाम हैं, हम कौनो मकान के ताजदार के सिपाही हैं। इतने में मुस्लिम इब्ने औसजा ने दम तोड़ दिया। इधर मुस्लिम इब्ने औसजा दम तोड़ते हैं, उधर एक खेमे से एक 8-10 साल का बच्चा अपनी कमर में नन्ही सी तलवार लगाकर करबला के मैदान में भाग रहा है। इमाम हुसैन ने उस बच्चे को देखा तो पुकार उठे, मेरे असहाब, जरा जल्दी से उस बच्चे को पकड़ो, वो किसका लाल है जो करबला में चला जा रहा है। वहीं से फितरत ने आवाज दिया, हुसैन, एक 8 साल का बच्चा करबला में जा रहा है तो तुम उस बच्चे को बचाने के लिए आवाज दे रहे हो। कल मगर जब तुम्हारी सकीना को थप्पड़ मारे जाएंगे हुसैन, तो कोई नहीं होगा जो तुम्हारी बेटी को बचाने की आवाज देगा। आज इमाम ने उस बच्चे को जब बुलाया है, इमाम के पास वो बच्चा आया, इमाम के जानू पर मुस्लिम इब्ने औसजा की लाश थी, उनका सर इमाम के जानू पे ढल गया था। इमाम पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस बच्चे से पूछा, ए बेटे, तू किसका बच्चा है? बच्चे ने कहा कि मुझसे पूछते हैं आप किसका बेटा है, तू कहाँ जा रहा है? कहा, करबला के मैदान में जा रहा हूँ। किस लिए जा रहा है? अज़मत हुसैनी पे जान देने जा रहा हूँ। किसने तुझे सजा के भेजा है? मेरी मुकद्दस मां ने मुझे सजा के भेजा है। किसका लाल है तू? कहा, मेरे आका बता दूं मैं किसका लाल हूँ? कहा, हाँ मेरे लाल, बता दे तू किसका लाल है। कहा, ये जिस बाप की गर्दन तुम्हारे जानों पे पड़ी हुई है, मैं उस मुस्लिम का बेटा हूँ और मेरे बाप की रूह मुझसे कह रही है, बेटे जब बाप नहीं रहा तो बेटा रह के क्या करेगा? जा मोहम्मद व आले मोहम्मद पे कुर्बान हो जा। आज एक बच्चा मोहम्मद
آج ایک بچہ محمد و آل محمد پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہے. میں تم سے پوچھتا ہوں مسلمانوں، ذرا سا دیکھو تو صحیح بچوں کے سمجھ میں بیعت اور عدم بیعت کس ڈھنگ سے آئی تھی. آج اس بچے نے بھی کربلا کی دھرتی پہ دم توڑ دیا ہے. تمام اصحابان حسین ایک ایک کر کے قتل ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد نتائج پھر کیا سامنے آتے ہیں اسے ملاحظہ کیجئے. اللہ اللہ، ظلم و ستم بھی اکٹھا ہیں، صبر و رضا بھی اکٹھا ہیں. کونین میں مستقبل کا ظلم بھی کربلا میں وقت سے پہلے آ گیا ہے. حال کا ظلم بھی سمٹ کے کربلا میں آیا ہے. ماضی کا ظلم بھی کربلا میں آیا ہے. نمرودی تیور بھی آپ کو کربلا میں ملے گا. فرعونی تیور بھی آپ کو کربلا میں ملے گا. ابو جہلی تیور بھی آپ کو کربلا میں ملے گا. ابو لہبی تیور بھی آپ کو کربلا میں ملے گا. امیہ کا تیور کفر بھی آپ کو کربلا میں ملے گا. مگر جہاں ظلم و ستم کے یہ سارے تیور تمہیں مل رہے ہیں، وہیں صبر و رضا کا بھی ہر تیور تمہیں ملے گا. ایوبی صبر بھی تمہیں کربلا میں ملے گا. سلیمانی شوکت بھی تمہیں کربلا میں ملے گی. داؤدی خلافت بھی تمہیں کربلا میں ملے گی. موسوی جلال بھی تمہیں کربلا میں ملے گا. عیسوی جمال بھی تمہیں کربلا میں ملے گا. ہارونی اخوت بھی تمہیں کربلا میں ملے گی. آدم کی آدمیت بھی تمہیں کربلا میں ملے گی. نوح کی شجاعت بھی تمہیں کربلا میں ملے گی. یعقوب کا اعتماد بھی تمہیں کربلا میں ملے گا. یوسف کا اس میں تمکنت بھی تمہیں کربلا میں ملے گا. ابراہیم کی خلت بھی تمہیں کربلا میں ملے گی. اسماعیل کا ذبح و ایثار بھی تمہیں کربلا میں ملے گا. اسحاق کی رضا بھی تمہیں کربلا میں ملے گی. ہارون کی اخوت بھی تمہیں کربلا میں ملے گی. زکریا کی معصومیت بھی تمہیں کربلا میں ملے گی. یحییٰ کی شہادت بھی تمہیں کربلا میں ملے گی. پیغمبر اسلام کی عصمت بھی تمہیں کربلا میں ملے گی. سب کو سمیٹ دو تو حسین بن کر کے تاریخ کربلا صبر کے میدان میں جگمگانے لگتی ہے. خلیل بھی سرے باغ رم یہ مان گئے وفا شیاروں کے ہیں. میرے کارواں شبیر یزیدی فوج کے کمانڈر نے اعلان کیا، لوگوں حسین دوسروں کے بال بچوں کو قربان کر رہے ہیں، غلاموں کو قربان کر رہے ہیں، اس لیے بیعت نہیں کر رہے ہیں. ان کے بچے جب مریں گے ان کے سامنے تب یہ جھکیں گے. امام کا ایک بچہ میدان میں آتا ہے اور امام علی مقام ذہن عطا فرماتے ہیں، میرے بچوں کو دیکھنا ہے. دیکھو علی اکبر تڑپ کے آئے، بابا اب دیکھا نہیں جاتا، مجھے میدان میں جانے دیجئے. علی اصغر خاموشی کے ساتھ جھولے میں پڑے ہوئے ہیں. سکینہ 3 دن کی پیاسی بے ہوش ہیں. آل محمد میدان میں آنے کی تیاری کر رہے ہیں. اتنے میں حضرت سکینہ نے کہا، سکینہ پکار اٹھی، اے چچا عباس میری خبر لیجئے، مجھے جھولے میں آپ جھلایا کرتے تھے، مجھے میرا آقا پانی نہیں پی سکا ہے، چلے گھوڑے سے اپنی سکینہ کو پانی لے کر دینے کے لیے. یزیدیوں نے کہا، ایک قطرہ پانی خیمہ حسینی میں پہنچتا ہے تو نتیجہ قہر ذوالجلال کی صورت میں نظر آئے گا اور قیامت یزیدیوں پہ برپا ہو جائے گی. اتنے تیر چلے ہیں، اتنے تیر چلے ہیں اکیلی جان پر کہ بچتے بچاتے خیمے کی طرف دوڑتے رہے. داہنا ہاتھ ایک شقی کی تلوار سے کٹ جاتا ہے، پلٹ کے مشکیزہ بائیں ہاتھ پہ سنبھالتے ہیں. 2 قدم چلے ہیں جھرمٹ میں شقیوں کے، دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا ہے. وفا کے سرور نے مشکیزے کو سقائے سکینہ نے اپنے دانتوں میں چھپا لیا ہے. نگاہ ہے اپنے اس خیمے پر جہاں سکینہ پیاسی ہو کر پانی کی صدا دے رہی ہے، مگر قسمت کی بدنصیبی کہاں ٹوٹی ہے کمن. 2-4 ہاتھ جب کہ لبے بام رہ گیا. اس کے دل سے پوچھئے ناکامیوں کی لذتیں، اس کے دل سے پوچھئے ناکامیوں کی لذتیں. لٹ گیا ہو جو مسافر جا کے منزل کے قریب، اس کے دل سے پوچھئے ناکامیوں کی لذتیں. لٹ گیا ہو جو مسافر جا کے منزل کے قریب. آرے بیٹی سامنے تھی، ایک چھلانگ لگائی کہ پہنچیں. شمر نے آواز دی، اتنے تیر برسا دو سقائے سکینہ کے مشکیزے پر کہ پانی کا ہر قطرہ حسین کے بھائی کے خون کے قطرے سے پہلے بہہ جائے. اور نتیجے کی شکل میں جب پانی بہ رہا تھا تو سقائے سکینہ نے آواز دیا، میری مظلوم بھتیجی افسوس چچا تیرے کام نہ آ سکا. تیری اس پیاس کو سلام جس کے لیے میں نے اپنا لہو بہا دیا. تیری اس پیاس کو سلام جس کے لیے میں نے اپنی جان کی بازی لگائی. تڑپتے ہوئے عباس نے آواز دی، شیر خدا کے نور عین لختے جگر مرتضیٰ کی خبر لو. بھائی دنیا سے جا رہا ہے اور حضرت امام
पाक आए हैं, भाई का जनाजा अपने हाथों पे उठा रहे हैं। किस कदर परेशानियों की मंजिल है। इमाम हुसैन ने अपनी जिंदगी की सारी कुव्वत इकट्ठा कर ली है, निगाह डालते हैं अपने शेर पे तो तड़प के रह जाते हैं। भैया अब्बास, तेरे जाने से मेरी कमर टूट गई है। अपने वजूदे नाजनीन पे भाई का लाशा उठा के ला रहे हैं। सकीना के सामने ला के ये लाश रखी है इमाम ने। बेटी, तेरा सक्का आया है, जो हाथ लेके गया था वो हाथ छोड़ के आया है, मगर तेरे सक्का ने ये सकीना वो हाथ यजीद के हाथ में नहीं छोड़ा है, शहादत के हाथ में छोड़ा है। और इमाम हुसैन शहादत के हाथ में हाथ छोड़ा है। हजरत अब्बास के सिरहाने आके सकीना जैसी मजलूम और कम उम्र बच्ची बैठती है और सर हिलाती है। थोड़ी देर के बाद कहती है, चचा इतना खामोश हो गए आप, इतना गुस्सा हो गए आप, इतना रूठ गए अपनी भतीजी से आप। चचा मुझसे गलती हुई कि मैंने आपको दरिया भेजा था। मेरे चचा, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम दुनिया से जाते जाते अपनी भतीजी से रूठ के गए हो या खुश होके गए हो। चचा एक बार तो अपनी आंख खोल दो और एक बार अपने लबों से बोल दो कि सकीना तेरा चचा तुझसे रूठा नहीं है, ताकि प्यासी भतीजी की रूह को करार आ जाए। मगर सकीना से मशीयत कर रही थी, सकीना जो दुनिया से चला जाता है कुदरत का फैसला है कि वो बोला नहीं करता, अहले जिस्म जिस्मानियात के सामने इस तरह आया नहीं करता। और सकीना बार बार कह रही थी, ऐ चचा जान पलट आओ तुम्हें मेरी कसम, ऐ चचा जान पलट आओ तुम्हें मेरी कसम, फिर न मांगेगी कभी बाली सकीना पानी। मगर चचा आप कहाँ पलटने वाले थे। इतने में इमाम ने अपनी बेटी को सब्र और रजा की गहवारी में पहुंचा दिया। हजरत अली अकबर निगाहों के सामने खड़े हैं और अली अकबर कहते हैं, बाबा अब जब्त की हद हो चुकी है, मेरा चचा दुनिया से गया, मुझे भी मैदान में जाने दो। इमाम फरमाते हैं, अपनी फूफी से रुखसत लो, तुम्हें पाला है हजरत ज़ैनब ने, ज़ैनब के कदमों में बच्चा आया है और रो रहा है। फूफी फूफी, फरमाया मेरे बच्चे मैं जानती हूँ तू क्या चाहता है, किस मुंह से तुझे रन जाने की इजाजत दी जाए, मगर शहादत का उरूस कह रहा है फूफी, ये तो हमारी खानदान की रीत रही है। मैदान मक्का में नाना के सर से जो खून बहा था उस खून की तकमील आज करबला में होने वाली है। फूफी क्या तुम्हें मेरे दादा का वो वादा याद नहीं है जब दावत जुल अशीरा पैगंबर ने दी थी और पैगंबर ने मक्के में अपने सारे कराबतदारों को बुलाया था। बुलाने के बाद नुक्ता दे रहा हूं, मुलाहिजा कीजिएगा, बुलाने के बाद पैगंबर ने तमाम कुरैशियों हाशमियों को खाना खिलाया और खिला के पैगंबर ने कहा, ए लोगों मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह एक है, इस्लाम सच्चा है, कुरान किताब हिकमत है, तुम इसे मान लो। तो कोई गाली देता हुआ उठा, कोई मजाक उड़ाता हुआ उठा। ऐसे ही आलम में एक 8 साल या 10 साल का दुबला पतला बच्चा था, टांगे उसकी पतली पत्ती थी, आंखें उसकी आशोप कराई थी, फूल जैसा खिलता हुआ उस बच्चे का चेहरा था। वो बच्चा खड़ा हुआ, उसने कहा, ए पैगंबर मैं आपका साथ दूंगा, मैं आपके मकासद की तकमील में आपका हाथ बटाऊंगा। मशीयत पूछ रही थी, बच्चे बचपन के ख्वाब बड़े सुनहरे होते हैं, बर आवाजे कोदका गर्रा मशो, बच्चे की आवाज पर घमंड नहीं किया जाता। पैगंबर से एक बच्चे ने कहा है मैं आपका साथ दूंगा। मशीयत ने कहा, इनका साथ देने की बात कर रहे हो, अमन के मैदान से लेके जंग के मैदान तक इनका रास्ता जाता है, साथ दोगे? बच्चे ने कहा हाँ देंगे। कहा खलवत से लेके जलवत तक और सफर से लेकर हिजरत तक इनका रास्ता जाता है, साथ दोगे? कहा हाँ देंगे। कहा बच्चे किसी रात अगर इनके बिस्तर पे तुझे सोना पड़े और वो कत्ले नबूवत की रात हो तो क्या तू साथ देगा? कहा हाँ साथ देंगे। कहा बच्चे अगर इनके दीन पर तुझे खूने जिगर की कुर्बानी देनी हो तो साथ देगा? कहा हाँ देंगे। कहा ए बच्चे तूने इनके लिए हाँ किया है, कभी ना तो नहीं करेगा? कहा नहीं, कभी ना नहीं करेंगे, इनके दीन के लिए हाँ किया है, ये हमारी हाँ कभी ना में नहीं बदल सकती। उस बच्चे का नाम अली था। नबी ने जो पैगाम दिया था उस पैगाम को अली ने कबूल किया था। अब इस हाँ की कीमत अली कहाँ कहाँ चुका रहे हैं। हिजरत करनी हुई तो
हिजरत करो, ना नहीं कर सकते। अली हाँ कर रहे हैं और हिजरत कर रहे हैं। इस हाँ की कीमत अली कहाँ कहाँ चुका रहे हैं। बिस्तर नबूवत पर कत्ल की रात सोना है, हाँ कर रहे हैं अली और सो रहे हैं। अली कूफा के मैदान में है, खंजर चल रहा है और इस्लाम के नाम पर अली ना नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि बचपन में वादा कर लिया था मुस्लिम पर्सनल्लाह के लिए हमेशा हाँ होगी, कभी ना न होगी। अब जब अली दुनिया से जाने लगे तो अपने खमीर जमीर को उन्होंने आवाज दिया, अपने बेटों को आवाज दिया और क़यामत तक पैदा होने वाली अहले बैत की रूह को आवाज दिया, मेरे बेटों मेरी हाँ की लाज रखना, मेरी हाँ को कभी ना में तब्दील न होने देना। अली अकबर कह रहे हैं जिस नाना की हाँ में हाँ मिलाई थी मेरे दादा ने, आज उसी नाना के दीन की हाँ में हाँ मिलाने जा रहा हूँ और यजीद की हाँ में ना मिलाने जा रहा हूँ। इमाम हुसैन का बेटा करबला के मैदान में आया और जब हजरत अली अकबर 18 साल की कड़ियल जवानी लेकर खड़े हुए हैं, यजीदी फौज ने खंजर गिरा दिए। यजीदी फौज के बूढ़ों ने अपनी रुख फेर लिए। शिम्र पूछता है क्यों तुमने तलवारें गिरा दी? कहा ए शिम्र हद हो गई बेहयाई की, अरे हम हुसैन से लड़ सकते हैं, अपने नबी से जंग नहीं कर सकते। पूछा गया तुम्हें नबी कहाँ यहाँ नजर आ रहे हैं? तो कहा वो देखो वो कौन है? कहा धोखा हो रहा है, वो नबी नहीं है, शबीहे नबी हैं। हजरत अली अकबर लड़ते जा रहे हैं और लड़ लड़ के वापस आए, बाप को खुश किया, कहते हैं बाबा अलविदाई सलाम लो। अब अली के चांद पे गुहन के बादल आने वाले हैं। थोड़ी ही देर में एक मनहूस आवाज शिमरे लईन की उभरी, हुसैन 18 साल के करियल जवान की लाश उठाओ, फातिमा के आंचल को हमने तार तार कर दिया है और सैयदा के अरमानों का खून कर दिया। ज़ैनब अपनी गोद के पाले हुए को मक्तल में देख, तेरे बच्चे के सीने में हमारे अनी की कड़ियां खुशी हुई हैं। हजरत इमाम जब मैदान में उतरते हैं, देखा 18 साल का लाल तड़प रहा है, जान जाने वाली है। एक नेज़े का फल हजरत अली अकबर के सीने में झांकुजी है। कहते हैं बाबा बहुत तकलीफ हो रही है, प्यास बेपनाह है बाबा, पानी दे दो। कहते हैं बेटे इरफान की राह पर साक़िए तस्नीमो कौसर से पानी मांग। इतने में रसूल अल्लाह का जलवे जहां आरा अली अकबर को नजर आया। कहा बाबा जहां से भी किसी दिल जले ने आवाज दी है, मुस्तफा वहीं से उसकी मदद करते हैं। बाबा मेरे आका आग निगाहों के सामने हैं, नबी पुकार रहे हैं, अकबर बाप से पानी मत मांग, साक़ी हौज़ कौसर के पास आ और मेरे बच्चे हुसैन को खुशखबरी दे कि उसका पानी लिए हुए नबी शहादत के बाद उसका इंतजार कर रहा है। हजरत अली अकबर दम तोड़ते हैं, बाप अपने बच्चे के सीने से नेज़े का फल निकालता है। बाप हो तुम, औलाद वाले हो तुम, सोचो तो सही, मैदान में 18 साल का लाल तड़प रहा हो। मैं पूछना चाहता हूं कि इतनी सारी मुसीबत हुसैन ने उठाई क्यों? जवाब दो कि सिर्फ मुस्लिम पर्सनल्लाह के तहफ्फुज़ के लिए हुसैन ने ये मुसीबत उठाई है, सिर्फ मोहम्मदुल्लाह के तहफ्फुज़ के लिए हुसैन ने ये मुसीबत उठाई है। आज अपने बच्चे के सीने से इमाम हुसैन जब निकालते हैं भाले को तो अकेले नेजा नहीं निकलता, नेजे के फल में बेटे का टंगा हुआ दिल भी निकल के आता है। अंदर से लोथड़ा गोश्त का बाहर आया। हुसैन है हिम्मत जो बेटे का खून देखो। हुसैन कहते हैं नाना की गोद में पला हूं, इस्लाम का खून देखने की हिम्मत नहीं है, हाँ इस्लाम को बचाने वाले का खून देखने की हिम्मत जरूर है। और इमाम ने अपने लाल को जाते जाते आखिरी सलाम किया। बेटे ने, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है और वही बात आप समझिए तो आपकी भी समझ में आएगी कि एक एक जान जा रही है। मसला किस बात का है? बैत कीजिए जान बचाइए, मान लीजिए हमारा कानून जान बचा लीजिए, नहीं मानिएगा जेल भी जाइएगा, मारे भी जाइएगा। तो हुसैन का एक बच्चा कटा, दूसरा कटा, भाई कट गया। अली अकबर को कहना चाहिए था कि बाबा बहुत हो गई कुर्बानी, देखो ये जालिम असगर को भी मार डालेंगे, ये जालिम खेमा भी फूंक देंगे, ये जालिम कासिम को भी मार डालेंगे, ये जालिम मोनो मोहम्मद को भी मार डालेंगे। जिस तरह
चचा को मारा है, ऐसे ही ज़ैनब पाक की चादर भी छीन लेंगे, ये बहुत सताएंगे बाबा, तुम्हें भी मार डालेंगे, क्यों नहीं यजीद की बैत कर लेते हो, क्यों नहीं यजीद की हाँ में हाँ मिला रहे हो। आले रसूल तुम्हारी फरासत ईमान और इस्लामी को सलाम। एक एक बच्चा जान दे रहा है, मगर हुसैन से कोई नहीं कहता कि रिवस हो जाइए, हुसैन से कोई नहीं कहता मसलहत को सलाम कर लीजिए, हुसैन से कोई नहीं कहता यजीद की हाँ में हाँ मिला लीजिए। जिन लोगों ने नबी की हाँ में हाँ मिलाई थी, वो लोग दुश्मने नबी की हाँ में हाँ कैसे मिलाते? कैसे बावफा लोग थे जिन्होंने वफादारियों की राह पे चलने का हम मुसलमानों को हौसला अता फरमाया है। इमाम कड़ियल जवानी लेकर के खेमे में आते हैं, ज़ैनब मेरे जवान की कुर्बानी मेरे रब ने कबूल कर ली। हजरत कासिम अपने चचा के पास आए हैं, चचा मैदान की इजाजत दीजिए। कहते हैं नहीं हसन की तुम निशानी हो। जाकर के फूफी के पास रोते हैं। फूफी कहती है क्यों, क्या बात है कासिम? कहते हैं काश आज मेरे बाप हसन होते तो मैदान करबला में शहादत का दरवाजा मुझ पर बंद न होता। अल्लाह अल्लाह, हजरत इमाम हसन ने हजरत इमाम कासिम को इसी दिन के लिए पाला था। आपने अपने हाथ का तावीज खोल के देखा तो चूमने लगे उस तावीज को। उसमें हजरत इमाम हसन ने लिखा था, मेरे लाल, मेरे खूने जिगर, मेरी निगाहों के नूर, मेरे दिल के सुरूर, एक दिन ऐसा आने वाला है कि मेरा भाई मक्तल करबला में शहीद होगा। मेरे बेटे, मुझे अफसोस है कि मैं उस जमाने में नहीं रहूंगा। तू मेरा बच्चा है, मेरे भाई के चरणों पे कुर्बान होने की जमानत देना। लेके आए, कहा चाचा शहादत की सनद मुझे मेरा बाप दे के गया है, देखिए ये शहादत की सनद है। जनाब कासिम भी मैदान में उतरे हैं। एक हलमी मुबारिस की सदा है, एक पहलवान आता है मुकाबले में लड़ता है, दूसरा आता है मुकाबले में लड़ता है। हजरात गिरामी, जब हजरत इमाम कासिम मैदान में आए थे तो उनका मुकाबिल बड़ा शहजोर था। अरजक नामी एक पहलवान करबला में यजीदी फौज में आया था, जिस पहलवान की ताकत बड़ी ही मशहूर मारूफ थी। 4 बेटों के साथ था मैदान में। उससे कहा गया जाओ कासिम का मुकाबला करो। उसने अपनी तौहीन समझी, जरा भर के बच्चे का मुकाबला सबसे बड़ा रुस्तमे कायनात करने जाएगा। अपना एक बेटा उसने भेजा, हजरत कासिम ने फना फिन्नार कर दिया। दूसरा बेटा उसने भेजा, हसन के शेर ने उसे भी मारा। तीसरा चौथा आया, उसे भी मारा। और इमाम कासिम ने कहा तू आ। और जब वो आया मैदान में झोलता हुआ फील की तरह, तो इमाम हुसैन ने गर्म रेत पे सजदा किया, मेरे माबूद मेरे बच्चे की लाज रखना, जालिमों का सबसे बड़ा पहलवान मेरे बच्चे के मुकाबले में है। इतने में भतीजे ने कहा चचा सर उठाइए, खुदा ने सुन लिया, देखिए ये हैदर की तलवार चमकी है और ये जालिम की लाश तड़प रही है। हजरत इमाम कासिम की मुकद्दस जात ने अपने वजूद नाज़नीन से अपने दादा हैदर कर्रार और अपने बाप हसन मुश्तबा के सब्र और तहम्मुल का भी इजहार किया है और शुजाअत और बेनज़ीरी का भी इजहार किया है। निकले सुन के तेगों की खनक हजरत कासिम ने कहा मेरी बारात की शायद यही शहनाई है। और शहनाई गूंजती रही, शहादत का नौशाह आगे बढ़ता रहा। कज़ा के नाम पर एक दिन सबको लब्बैक कहना है और उसे मौत ने गोद में लेकर हयात अबदी का जिंदे जावेद दूल्हा बना दिया। भतीजे की लाश भी इमाम ने लाके रखा है। सकीना बेहोश पड़ी हुई है। ऐसे आलम में उम्मे रबाब ने एक आहे सर्द खींची, इमाम छोटा सा बच्चा झूले में तड़प रहा है, असगर प्यास से जा बलब है। यजीदियों से कहिए कि यजीदी इस बच्चे पे तो रहम खा जाएं, पानी का एक कतरा इस बच्चे को तो दे दें। मेरे आका अपने दामने अजमत में उस बच्चे को छुपा के मैदान करबला मिला रहे हैं। बच्चा रो रहा था। लोग कहते हैं बच्चा पानी के लिए रो रहा था, उबैद एक जहन दे रहा है, मुलाहिजा कीजिए, पानी के लिए नहीं रो रहा था, शहादत का पानी जरूर उसको चाहिए था। देखिए जब बच्चे अपनी बात मनवाना चाहते हैं या बड़ों की फिक्र को अपनी तरफ मुल्तफित करवाना चाहते हैं तो रोने लगते हैं। और उनके रोने का मिजाज समझदारों की के लिए जरूरत है कि समझदार उनके रोने का मिजाज समझें। कुछ लोगों ने उनके रोने का मिजाज पानी की तलबी को समझा था, मगर मैं इमाम असगर का गुलाम में दर गुलाम ये समझता हूं कि असगर रो के कह रहे थे बाबा शहादत के मैदान में आज साक़िए कौसर का इस्लाम
बजरिया शहादत का पानी दे रहा है। जितने जुबान वाले थे वो तो बोल बोल के मैदान में जाते रहे, ए बाबा मैं जिहाद कैसे करूंगा। जब बच्चे के पास जुबान नहीं तो रोने लगा, पानी बहाना बन गया मैदान में जाने का, वरना बच्चा जहन ये दे रहा था कि मैं आले रसूल अल्लाह हूँ। जहां सब जुबान वाले शहादत का पानी पी रहे हैं वहीं बेजुबान को भी ले चलो ताकि तारीख करबला हर तरह से मुरत्तब और मुकम्मल हो जाए। ये बच्चा शहादत के लिए मैदान में आया है। अब असगर मजलूम से सवाल कीजिए कि असगर, अली अकबर ने तो तलवार उठाई थी तो लड़े थे, तुम्हारे पास कौन सी तलवार है। हजरत कासिम ने तो नेजा उठाया था लड़े थे, तुम्हारे पास कौन सा नेजा है। तुम्हारे चचा हजरत अब्बास ने तो तीर उठाया था लड़े थे, तुम्हारे पास कौन सा तीर है। उन्होंने कहा मुझे मैदान में तो चलने दो, मेरा तीर भी दुनिया देखेगी। यजीदियों का सीना उससे घायल हो न हो, हुसैनियों का सीना हर साल उससे घायल होता चला जाएगा। जब बच्चा मुकाबले पे आया और पूछा गया कि ए असगर कैसे तीर चलाओगे, तो बच्चों ने अपनी जुबान का तीर अपने लब पर फेरना शुरू किया। ए जमाने देख ये हमारा तीर है, और जो ही वो तीर बाहर निकला है प्यासे का, हुरमल के तीर ने उस तीर को तोड़ने के लिए अपनी आखिरी ज़र्ब-ए-कारी का पैगाम दे दिया है। यजीदियों के दिल असगर की उस जुबान तीर से हिले न हिले, मगर प्यास के आलम में, तसव्वुरात की दुनिया में जब असगर का तीर बजुबान जुबान सामने आता है तो कौन है जिसका कलेजा घायल नहीं होता। असगर की गर्दन कटी, खून चुल्लू में आया इमाम के। सोचा कि आसमान की तरफ फेंकें, आवाज सुनते हैं हातिफ गैबी की, हुसैन खबरदार हमारी तरफ मत फेंकना आका, वरना क़यामत तक हम आसमान से अबरे 12 जमीन वालों पे गिरने नहीं देंगे। आपने सोचा कि असगर का खून जमीन पे डाल दूं। जमीन ने कहा हुजूर एक दाना नहीं उगेगा खूने हुसैनी की कसम। आपने अपने बच्चे का खून अपने चेहरे पे मल लिया और मलने के बाद कहा यजीदियों गवाह रहना, कल हुसैन इसी तरह मैदान महशर में दावर महशर के सामने जाएगा। दस्ते शहपियों पिए जामे शहादत असगर, जैसे गुलशन में कली शाख पे मुरझाई हो। हजरत इमाम बच्चे को घर में लाए हैं, उम्मे रबाब के हाथ में बच्चा दिया जाता है। ज़ैनब पाक एक मासूम और मजलूम कुर्बानी भी देख रही हैं। इमाम ने मैदान में आके कहा मौला मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि शहीदाने मोहब्बत का गुस्ल उनके खून में होता है। मौला देख मैं अपना गुस्ल कर रहा हूँ, परवरदिगार इस खून को रायगा मत होने देना। माबूद मैं तेरे इस्लाम के शजरे तैयबा की जड़ में अपने खून से गुलकारी करता जा रहा हूँ। इमाम हुसैन ये कुर्बानियां दे करके अब खेमे में आ रहे हैं। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत, सर शहीदाने मोहब्बत के नेज़ों पर बुलंद और ऊंची खुदा ने कद्र शाने अहले बैत। हजरते इमाम हुसैन खेमे में सबसे कह रहे हैं अब मैं मैदान जा रहा हूँ। बहन से कहा आखिरी दीदार कर लो, बीवियों से कहा जाने रसूल को एक नजर मोहब्बत देख लो। कोहराम मचा है खेमे आले अबा में। जब इमाम आगे बढ़ने लगे तो बहन ने आगे बढ़ के कहा हुसैन मेरी माँ के प्यारे हुसैन, मेरे बाप के राज दुलारे हुसैन, तुम जा रहे हो तो जाने से पहले पहले सुनो, अली की बेटी जाग गई है, हैदर की फिक्रो फन बेदार हो गई है। सुनो ए हुसैन तुमको मैं शहादत का दूल्हा बनाऊंगी, इस लिबास को उतार दो। इमाम ने कपड़े बदले और बदलने के बाद हजरत ज़ैनब सामने आई। आकर के नाना का अमामा निकाला, ये रसूल अल्लाह का साफा अपने हाथ से बांधा हजरत ज़ैनब ने। उसके बाद हजरत ज़ैनब ने कबाए रसूल हजरत इमाम हुसैन को पहनाया। पहन चुके इमाम तो बहन ने एक पोटली खोली और उसमें से एक दुपट्टा निकाल के बहन रोने लगी, मेरे भाई ये फातिमा का दुपट्टा है, आज के दिन तेरी बहन करबला में से संभाल के लाई थी। पटका बांधा है माँ के दुपट्टे का इमाम ने और हाथ में जाफर तैयार की ढाल देती है ज़ैनब पाक। हजरत हसन मुश्तबा का
पटका देती हैं और हैदर कर्रार की तलवार जुल्फकार दे करके घोड़े पे रुखसत करती हैं। घोड़े पे बहन बिठाने लगी तो कहा, हुसैन मैं रिकाब तो तेरी थाम लूं। मेरे हुसैन, मेरे खानदान की रवायत रही है कि जब मेरे नाना मेराज में जा रहे थे, जुमला नाजिल हुआ है, दुआ दीजिए, जब मेरे नाना मेराज में जा रहे थे तो उनके बुराक पे बैठने के वक्त जिब्रील ने उनकी रिकाब थामी थी। जब नाना जा रहे थे मेराज में तो जिब्रील ने रिकाब थामी थी। और जब अली घोड़े पे सवार होते थे जिहाद में जाने के लिए तो हसन और हुसैन रिकाब थामते थे। जब हसन जाते थे मैदान में तो हुसैन रिकाब थामते थे। ए हुसैन, आज तेरी रिकाब कौन थामेगा? आज तुझे शहादत के मैदान में कौन भेजेगा? आज कोई मर्द नहीं रह गया। ज़ैनब अपने बाप को फरीजा अदा कर रही है। हुसैन मैदान जंग में आ रहे हैं। आखिरी दीदार घर वालों ने कर लिया। इमाम ने सामने यजीदियों के फिर एक खुतबा दिया, यजीदियों मेरे खून में अपने हाथ को मत रंगो, हल मिम मुगीसी युगीसना, है कोई जो मेरी मदद करे? रूहे हुर पुकार उठी, ए जालिमो, मैंने कहा था ना कि ये सखी इब्ने सखी हैं। देखो आखिरी नारा फिर ये जन्नत जाने का तुम्हें दे रहे हैं। है कोई जो मेरी मदद करे? अब से भी अगर तुम पलट के हुसैन के साथ आ जाओ दीन की हिमायत में तो अली अकबर के कातिल को भी हुसैन माफ कर देंगे, अली असगर के कातिल को भी हुसैन माफ कर देंगे। इतने में शिमर ने कहा, ए हुसैन, क्या बहन से मशवरा कर रहे थे कि यजीद की बैत मान लूं? गरजदार आवाज में शेर खुदा ने कहा, ओ नापकार फन, अगर मुझे यजीद की बैत ही करनी होती तो अली असगर को न गंवाता, अगर यजीद की बैत ही करनी होती तो अली अकबर को मैदान में न उतारता। मुझे यजीद की बैत कभी भी मंजूर नहीं है। मेरे खून के फव्वारे दुनिया को हक्को सलामती और शुजातो मर्दानगी के रास्ते दिखाते चले जाएंगे। इमाम ने मैदान में यजीदियों से कहा, आखिरी बात मेरी सुनो, अगर अब भी तुमने मेरे नाना के दीन की हिमायत कर ली तो हुसैन तुम्हें माफ करेगा। चारों तरफ से एक इल्गार हो जाती है। काबे को जमीन पे गिराने के लिए संग दिलाने जमाना ने कोशिशें कर ली हैं। इमाम पर मुसलसल तीरों की बारिश है। इमाम फिर वापस खेमे में आते हैं। बहन को देखा तो बहन से कहा, ए मेरी बहन, मेरी सकीना का ख्याल रखना। हजरते शहरबानो कहती हैं, हुजूर सकीना बेहोश पड़ी है। ऐसे ही आलम में इमाम ने अपने दामन की हवा दिया सकीना को। आंख खुली सकीना की तो सकीना लिपट गई। बाबा तुम मैदान में मत जाना, तुम कट गए तो मैं बाप किसको कहूंगी? तुम कट गए तो मेरा साथी कौन होगा? मेरे अरमानों की दुनिया उजड़ जाएगी, मेरे प्यार की नगरी खत्म हो जाएगी। एक तरफ मोहब्बत है औलाद की, दूसरी तरफ फर्ज है इस्लाम का। मुस्लिम पर्सनल के लिए हुसैन बेटी के अरमानों का खून कर रहे हैं और कहते हैं, बेटी कज़ा व कद्र के हाथों मजबूर है हुसैन। तेरे अरमानों की कद्र मुसलमान करेंगे, तेरी फिक्रो नजर के तर्जुमान मुसलमान बन जाएंगे। बेटी मैं कौम की अमानत हूं, मुझे कौम की गोद में जाने दे। हजरत इमाम हुसैन घर से निकले और घोड़े पे बैठ के चले फिर मैदान की तरफ। घोड़े को चाबुक पे चाबुक इमाम दे रहे हैं। घोड़ा कतई आगे जाने के लिए तैयार नहीं। इमाम ने कहा, मेरे गाजी क्या डर गया यजीदियों से? मेरे गाजी आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? घोड़े ने निगाह उठाया, आंखों से उसके आंसू गिर रहे थे और झुरझुरी लेके उसने पीछे दिखलाया। कहा, इमाम मैं कैसे आगे बढ़ूं? मेरे पैर में तो मोहब्बत की जंजीरें पड़ी हुई हैं। मेरे आका मैं यजीदी नहीं हूं। जरा पलट के देखिए, सकीना ने मेरा दोनों पैर छान लिया है अपने हाथों से। अगर आगे बढ़ता हूं तो सकीना दब जाएगी। मैं सकीना को दबाकर यजीदी नहीं बनना चाहता, मैं सकीना को बचाकर हुसैनी बनना चाहता हूं। पहले मेरे कदमों से सकीना को निकाल दीजिए, उसके बाद मैं आगे चलने के लिए तैयार हूं। इमाम ने कहा, बेटी मोहब्बत की इस लाजवाल नेमत को फरामोश न करो जो शहादत की मंजिल में तुम्हारे बाप को मिलने वाली है। बेटी ने, अलविदा मेरे मुकद्दस बाप, रुखसत मेरे हुसैन, तेरी बेटी यतीमी का दाग लेकर जी लेगी मगर इस्लाम को मैदान जुल्म सितम में यजीदियों की तलवार के नीचे नहीं कटने देगी। आज एक बच्ची अपने बाप को रुखसत कर रही थी, औरतों को किरदार दे रही है सकीना कि
कल जब तुम्हारे मुस्लिम पर्सन अल्लाह पे कोई वक्त आए, कल जब रसूल अल्लाह की शरीयत पे कोई वक्त आए, तो ए बच्चियों तुम भी अपने बाप को शहादत के मैदान में रुखसत कर देना। ज़ैनब बहनों को ज़हन दे रही हैं कि कल जब रसूल अल्लाह के दीन पे कोई काली घटा छाए तो बहनों तुम भी अपने भाइयों को शहादत का दूल्हा बना के आगे बढ़ा देना। हजरत शहरबानो ज़हन दे रही हैं, ए बीवियों जब इस्लाम का सुहाग कोई उजाड़ना चाहे तो अपना सुहाग उजाड़ के इस्लाम का सुहाग बचा लेना। हजरत इमाम हुसैन करबला जा रहे हैं, एक एक किरदार इंसानियत की बका की जमानत ले रहा है। मेरा आका आगे बढ़ता गया, यजीदियों से जंग पे जंग हो रही है, तलवार चली, हैदर का लाल कुछ तो पुश्ते लगाता जा रहा है। दरिया में पहुंचे, पानी पीने की मंजिल भी आई, मगर इमाम ने कहा पानी नहीं पिएंगे। बड़ा बदनसीब था फुरात, अगर इमाम को फुरात मिल गया होता तो वैसे ही आज तबर्रुक बन जाता, जैसे इस्माइल को जमजम मिल गया था और जमजम तबर्रुक बन गया था। फुरात की किस्मत नहीं थी कि वो जमजम बन सके। इमाम पलटे, इस कदर तीरों पे तीर लगे कि रसूल अल्लाह की शहादत जहरी दुनिया के सामने आई। मैंने शायद कल कहा था आपसे कि शहादत सिर्री उस शहादत को कहते हैं जो छुप जाए। हसन की शहादत रसूल की शहादत सिर्री थी जो छुपी रही, शहादत जहरी उस शहादत को कहते हैं जो छप जाए। हुसैन की शहादत रसूल की शहादत जहरी थी जो छपी रही। मुसलसल हजरत इमाम हुसैन अला जद्दिही वालैहिस्सलाम ने अपनी शहादत के तस्करे जमीन पे छेड़े। 72 तीर लग चुके हैं, असर का वक्त हो रहा है। करबल की धरती पर शहादत का चांद हमेशा के लिए गुरूब होकर कौनैन को रोशनी देने वाला है। घोड़े से गिरे तो किबला रू ज़हन था। यजीदियों ने कहा यजीद के नाम पे बैयत कीजिए, आपने कहा नहीं नमाज के नाम पर बैयत करूंगा, अपने बाप की अमानत के नाम पर बैयत करूंगा। सीने पे शिम्र सवार हुआ है तो हुसैन कहते हैं शिम्र ताकि मैं अपने खुदा के दीन की अमानत दुनिया को दे दूं और तलवार के नीचे सजदा करके बाप की सुन्नत अदा करूं। इमाम ने सजदे में सर रखा और पूछा अपने मालिक से, मौला नजद के दीवाने को तो दुनिया देखेगी, करबला में अपने दीवाने की दीवानगी भी तू देख, क्या ये अदा तुझे पसंद आ रही है? जान दे रहा है हुसैन और आवाज आ रही है आसमान से, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्नतु तुरजई इला रब्बिका रादियतम मर्दिया। ए नफ्स मुतमइन्ना आ हम तुझसे राजी हैं, तू हमसे राजी हो जा। फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। हुसैन ने अजमत इस्लाम के लिए अपने को तोड़वाया मगर अजमत इस्लाम को टूटने न दिया। जुल्म के आगे सर न झुके। और पैगाम करबला क्या है? इमाम अली मकाम ने अपने वजूद नाज़नीन पर तीर खाकर ज़हन दिया कि इंसानी जिस्म इस्लाम के लिए तीर खा सकता है मगर इस्लाम के जिस्म पर मुसलमान तीर नहीं आने दे सकता। आज के माहौल में इमाम की शहादत हमारी बेहतरीन रहनुमा है। आज के माहौल में इमाम का सर कटना हमें हौसला देता है। दीन हुसैन ने जिस अजमत पाक पे कुर्बानी दी थी, हम उस इस्लाम की मानो मर्यादा को मरने नहीं देंगे। हुसैन आजम ने अपना तन मन धन लुटाया, अपनी आलो औलाद सब दी। किसके लिए? न नमाज सुबह होती न नमाज शाम होती, न नमाज सुबह होती न नमाज शाम होती। अरे वो तो कहिए आले अहमद ने बचा लिया सफीना। न नमाज सुबह होती न नमाज शाम होती, वो तो कहिए आले अहमद ने बचा लिया सफीना। करबला का मैदान हर साल निगाह के सामने आता है। तारीख करबला हर साल मुसलमान दोहराता है। करबला हमें पैगाम देता है कि शरीयत में तब्दीली इम्पॉसिबल नामुमकिन है। करबला हमें पैगाम देता है कि हर दौर में हुसैनी अजमत को सलाम करना ही इस्लाम व ईमान की दलील है। आज हुसैन आजम के गुलामों ने हुसैन के नाम पे हाथ उठाया है। कल यजीद के नाम पर हुसैन से लोग हाथ उठवाना चाहते थे। हुसैन ने कहा नहीं, ये हाथ उठेगा तो इस्लाम के नाम पे उठेगा, ये हाथ झुकेगा तो इस्लाम के नाम पे झुकेगा। इसलिए मुसलमानों मैं तुमसे कहता हूं कि शहीद उसी रहनुमा का नाम होता है जो रहनुमा हर दौर में बातिल की गर्दन तोड़ता है। जब जब इस्लाम पे वक्त आएगा हुसैन की शहादत पर्दे ईमान से झांक कर तुम्हें
آواز دے گی. مسلمان ہو تو فاطمہ کے لال کا خونین چہرہ دیکھو. کل میں نے اپنی آلو اولاد کو چھوڑا تھا اور کربلا کی جیل میں اپنے کو مرنے کے لیے تیار کیا تھا. کیا تم میرے نانا کے دین پر مرنے کے لیے تیار نہیں ہوگے؟ امام حسین کی شجاعت مند زندگی بزدلانہ ماحول میں بزدلوں کو آواز دے رہی ہے. تمہارے نام سے کروٹ بدل نہیں سکتا. ہمارے نام سے آواز دو زمانے کو. جب حسینیت کرب و بلا کے میدان سے آواز دے کہ اسلام کی عزت کا سوال ہے, تمہیں اپنے وجود کو شو کرنا ہوگا. تو بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو قومی رہنما بھی بنتے ہیں اور جب قوم کے اوپر وقت آتا ہے تو اپنے نام کو یزیدی مسلمانوں کی طرح چھپاتے ہیں. میں کہتا ہوں تم سے, چھپنے کا وقت نہیں ہے, چھپنے کا وقت ہے. چھپانے کا وقت نہیں ہے, شہادت کی راہ میں مسکرانے کا وقت ہے. آگے بڑھو اور ان رہنماؤں کو جوتے کی نوک پہ پھینک دو جو آج کے دن تمہاری رہنمائی کرنے کے لیے تیار نہیں. حسینی عظمت کو ہم کسی بزدل کے حوالے نہیں کر سکتے. صرف قوم سے قربانی مانگنے والوں, تم کس دن کے لیے پیدا ہوئے ہو؟ جنت صرف قوم کو نہیں جانا ہے, مولویوں کو بھی جانا ہے. اور مطالبہ کرو تم ان مولویوں سے کہ ہمیں صرف پیغام انقلاب و جہاد دو گے, عمل کر کے کب دکھاؤ گے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ہاتھ پیر نہیں چموایا تھا, میدان خندق میں رسول اللہ نے خندق بھی کھودی تھی. نبی نے پیٹ پہ میدان جہاد میں پتھر بھی باندھے تھے. یہ مرغا کھانے والے کس دن پتھر باندھیں گے؟ کس دن میدان میں آئیں گے؟ اس لیے یاد رکھیے, پہچانیے چہروں کو. اور اسلام کی عظمت پہ قربان ہونے کے لیے اگر کوئی مولوی پگڑی پگڑا بات کے ہیرا پھیری کرتا ہے قوم اسے بخش نہیں سکتی. یہ یاد رکھیے گا. قومی عظمت کو سلام کیجیے. ہم سے جو کچھ ہو سکے گا وہ ہم کریں گے. آپ سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ آپ بھی کریں گے. اور میری قوم, یہ سنی قوم تو جواب نہیں. خدا کی قسم, غوث پاک کے نام پہ کٹے, یہ خواجہ کے نام پہ کٹے, یہ پیر کے نام پہ کٹے, یہ پیرانے